Hello everyone, it's me Mariam Adil here again with a new lesson, that is lesson number 3, in which we are going to talk about some of the common mistakes which we make while we have to speak English language. We usually make some common mistakes, and what is the reason behind? The major reason, the major problematic thing is when we try to translate a language into another language. So यहाँ पे जब भी लोग English language सीखना चाहते हैं, they usually translate it directly, purely and literally from Urdu to English language. So that is most of the time quite destructive because it slows down the process of learning new language, as well as it causes many problems, many mistakes. So I have mentioned some of the Urdu utterances here. Urdu में लिखी हुई हैं, Urdu फिकरात हैं, but that is only for convenience purpose. Please do not rely on Urdu, वो जो उर्दू के फिकरात होते हैं, do not rely on them completely because it's gonna be a barrier in the process of learning a new language. The best way to start learning English language is to start think in English. The best way is that you have to start thinking in English. So this is the way you try to create a flow in yourself for a language. It can be any language. So whenever you are learning a new language, you have to make it a habit to start thinking in that language. It's gonna be real helpful. Okay, before we start our lesson, I have the same request like I did before, that you have to subscribe to my channel if you haven't till now. Please do it, as well as please press the bell icon to get the notifications for the new lessons, whatever we have for the further classes. Okay, so let's start it properly. Lesson number 3, that is about the common mistakes we make in learning English language. Okay, you can see the examples here. For example, whenever we have to say काश मैं वहाँ होता, so the pure English for that, I wish I were there rather than I wish I was there. It's a wrong sentence. So आपको लगता है that I am the singular one, so you have to use was with I, with your own self, with first person singular, but it's not the case actually. You have to use were when you are talking about something that is not possible right now. जो चीज़ हो ही नहीं सकती, काश में चली गई, you have to use were with that. I wish I were there. तो I wish I was there के बजाय the correct sentence is I wish I were there. Another example can be जब आप कहते हो काश मैं डॉक्टर होती या होता, I wish I were a doctor. ठीक है, rather than I wish I was a doctor, you have to say it I wish I were a doctor. ठीक है. Okay, the next sentence is हम 5 हैं. जब हमने इसको रेफर करना हो हम 5 हैं, we usually say we are 5. That is logically a wrong sentence. What do you have to say for that? We are 5 नहीं कहना. Instead of that, you have to say there are 5 of us. ठीक है, there are 5 of us. It might be about your family members. ठीक है, so if you're talking about your family members, कोई पूछ ले how many siblings do you have, तो आप कह सकते हो there are 5 of us in my family, there are 4 of us in my family, there are 2 of us in my family. अच्छा, family के अलावा it can be about a team. For example, there are 5 of us in my team. So the correct utterance is there are 5 of us rather than we are 5. Okay, and the next is there is a difference between marriage and wedding. ठीक है, जब आप कहते हैं मैं उसकी शादी में गया या मैं उसकी शादी में गई, तो वो यूजुअली से आई वेंट टू हर मैरिज. ठीक है, मैरिज इज बेसिकली यूज्ड एट अ पर्सनल लेवल. इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. ठीक है, बट व्हेन वी से वेडिंग, इट कवर्स ऑल ऑफ द सेरेमनीज विच यूजुअली टेक place in a whole marriage process or whole wedding process, in which families are gathered and there are some different ceremonies to follow. So that is basically overall called wedding rather than marriage. तो जब भी आपने किसी की शादी पे जाना हो, never call it as a marriage.
In fact, you should say it as a wedding. I went to her wedding. I am invited to his wedding. तो wedding is the appropriate word for that. Okay. Next one is whenever you have to say मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं घर जा रहा हूँ के लिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं जो कि गलत है, I am going to home, ठीक है. I am going to home is a wrong sentence. The correct sentence is I am going home, ठीक है. I am going home. उसके साथ आपको to की preposition लगाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है. I am going home is a more appropriate sentence rather than I am going to home. That is incorrect. Okay. Okay. The next is उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई. अब जब भी आप दो लोगों को रेफ़र करते हो फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज, तो उसमें हम अक्सर जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ट्रांसलेशन यूजुअली डिस्ट्रॉयज इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट सम सेंटेंस, सम अटरेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. तो उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, देखिए ये नहीं होता ठीक. जब हम कहते हैं ना शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर इज़ नॉट यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, ठीक है. रादर देन दैट व्हाट शुड वी यूज़, शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है. टू अ डॉक्टर इज़ करेक्ट टर्म. जब आपने कहना हो कि किसी की शादी किसी के साथ हुई है, तो उसके लिए विद के बजाय वी शुड यूज़ टू वाला प्रेपोजिशन. दैट इज़ करेक्ट वन, ठीक है. अच्छा, सो नेक्स्ट इज़ मैं एक बैंक में काम करता हूँ. जब आप इसको इंग्लिश में बताने की कोशिश करते हो, अगेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट, वो हम मे को इन में ट्रांसलेट कर देते हैं. दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है. इसके यूजुअली ट्रांसलेशन लोग क्या करते हैं, आई वर्क इन अ बैंक. दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है. करेक्ट क्या होगी, आई वर्क फॉर अ बैंक, ठीक है. किसी भी कंपनी के लिए आप काम करते हो, वी यूज़ फॉर दैट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क फॉर अमेज़ॉन, आई वर्क फॉर एनी स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है. तो वो आपने उसको उस तरीके से करना होता है. रादर देन सेइंग कि आई वर्क इन अ बैंक, यू शुड से आई वर्क फॉर अ बैंक, ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जब हम कहते हैं कि somebody इज़ गुड इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, तो वो हम इन नहीं कहते, ठीक है. वही ट्रांसलेशन को जब हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे भी हम गलती करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने किसी को बताना हो शी इज़ गुड इन इंग्लिश, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है विच वी यूजुअली मेक, ठीक है. तो ये नहीं होता. शी इज़ गुड इन इंग्लिश इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. रादर देन दैट व्हाट शुड वी यूज़, वी शुड से शी इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है. शी इज़ गुड एट इंग्लिश. कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी स्किल हो, फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू यूज़ एट. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेजेस के अलावा अगर हम स्किल्स की बात करें, व्हाट कैन बी द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ गुड एट कुकिंग, ठीक है. शी इज़ गुड एट गार्डनिंग, शी इज़ गुड एट एनी स्पेसिफिक स्किल, एनी स्पेसिफिक थिंग, एनी स्पेसिफिक हॉबी काइंड ऑफ, वो भी हो सकता है, ठीक है. और लैंग्वेजेस में भी शी इज़ गुड एट इंग्लिश, शी इज़ गुड एट उर्दू, शी इज़ गुड एट पर्शियन, एनी लैंग्वेज. तो उसके लिए हम हमेशा एट यूज़ करते हैं. अच्छा, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, मेरे एक दोस्त टोक्यो में रहते हैं, ठीक है. तो इसको जब हम इंग्लिश में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वी मेक एन अदर ह्यूज ग्रामेटिकल मिस्टेक. हम क्या करते हैं, हम टेंस का थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव इन टोक्यो, ठीक है. वन ऑफ माई फ्रेंड तो होगा ही नहीं. वन ऑफ माई फ्रेंड की बजाय द एक्सेप्टेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और टेंस भी यहाँ चेंज होगा. यहाँ पे आप इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन टोक्यो, ठीक है. अगर यहाँ पे होता, लेट मी क्लैरिफाई इट, कि अगर यहाँ पे होता सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बजाय होता सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फिर हम लिव यूज़ करते, ठीक है. ये लिव्स किस लिए है, क्योंकि हमने वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि अपने सारे दोस्तों में से एक की बात की, ठीक है. अगर हम यहाँ पे कहें नन ऑफ माई फ्रेंड्स,
ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स की बजाय अगर हम यूज़ करें कि नन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे फ्रेंड्स में से कोई भी वहाँ नहीं रहता, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन टोक्यो, क्योंकि नन भी एज अ सिंगुलर ही ट्रीट होता है और हमें पता है कि वो जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसका रूल क्या होता है, दैट वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज एस और ई एस का एडिशन उसमें होता है, ठीक है। तो अगर हो ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, नन ऑफ माई फ्रेंड्स, ईदर ऑफ माई फ्रेंड्स, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स, उनके साथ हमेशा लिव्स यानी कि सिंगुलर के साथ जो भी हमारा टेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है हम उसको फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल बात होती जस्ट द वे आई मैंशनड बिफोर कि सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे लिव आता। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट इज़, अब देखें यहाँ पे कुछ नाउन्स होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स हमारे कौन से आते हैं। वी जस्ट ट्राई टू क्रिएट एन इमेज इन आवर माइंड और फिर हमें उससे उसके हिसाब से जो सूटेबल लगता है वी गो विद दैट एंड दैट इज़ अ रॉन्ग आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहते हैं आपके बाल वाकई खूबसूरत हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए, हम यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं, हम बालों के लिए हेयर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर्स तो गलत होता है और उसके बजाय हमें क्या कहना चाहिए, योर हेयर इज़ रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। हेयर एज अ सिंगुलर वर्ड यूज़ होता है, चाहे वो प्लूरल हो जो भी हो, यानी कि यू कैन से दैट देयर इज़ नो प्लूरल फॉर हेयर, ठीक है, हेयर का कोई भी प्लूरल नहीं होता, हेयर सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है। योर हेयर इज़ ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक द वे जब हम कहते हैं शुगर, गिव मी सम शुगर, तो शुगर का भी हम प्लूरलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरह से आप हेयर को भी एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करते हो, यानी कि उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़, जब हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, और खाना वगैरह आपने खाया एंड यू वांट टू से दैट आई विल पे द बिल, तो ये जो आई विल पे द बिल है इसके बजाय, इट्स नॉट रॉन्ग वन दो, ठीक है, रॉन्ग नहीं है, बट फॉर दैट द मोर एक्सेप्टेबल एंड द मोर ट्रेंडी इज़, इट्स ऑन मी, ठीक है। Rather than saying I'll pay the bill, you should say it's on me, या फिर the bill is on me, the bill is on me, या फिर it's on me, ये understood होता है। जब आप कहते हैं कि it's on me, वो कुछ खाना हो या आपने कुछ भी परचेजिंग की हो, कुछ भी आपने ख़रीदा हो for somebody who is with you, तो वो आप नहीं चाहते कि वो इस चीज़ के पैसे अदा करे और आप चाहते हो you want to pay on the behalf of the person, तो उसके लिए आप कहोगे it's on me, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको इंग्लिश बोलने की यानी कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं, यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, गलत बोलते हैं हम, ठीक है। यू शुड प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश इज़ अ रॉन्ग अटरेंस, इसकी जगह ठीक क्या है, यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। ये वही, अगर मैं इसको रिलेट करूं, जैसे हमने कहा था कि हम वो नहीं कहेंगे कि आई एम गोइंग टू होम, ठीक है, उसको हमने रिजेक्ट किया था, उसके बजाय हमने क्या कहा था, आई एम गोइंग होम। सेम इज़ द केस हियर कि आप यहाँ पे प्रीपोजिशन निकाल रहे हो, ठीक है, आप उसके बजाय क्या कह रहे हो, यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश सिंपली विदाउट एनी यूज़ ऑफ टू, और स्पीक भी हमने हटा दिया तो उसके बजाय वी हैव यूज्ड आईएनजी फॉर्म, ठीक है। यू शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इट्स मोर एक्सेप्टेबल और ये ज़्यादा सूटेबल लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़, क्या हम शुरू कर सकते हैं, वेन एवर यू हैव टू स्टार्ट अ टास्क विथ समबडी और यू वॉन्ट टू गेट अ परमिशन फ्रॉम समवन, तो हम यूजुअली क्या कहते हैं, कैन वी स्टार्ट नाउ, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, कैन वी स्टार्ट is considered grammatically wrong sentence, उसके बजाय correct क्या होगा, can we get started, ठीक है, can we get started, तो this is the grammatically correct sentence। ओके, नेक्स्ट इज़, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहना हो कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है, ठीक है, तो आप उसको कहते हो आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी,
अब than जो होता है that is used for comparison purpose for the sake of adjectives degree, ठीक है, वो जो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं उनके लिए कंपैरिजन यूज होता है than से. फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हो she is more pretty than her, ठीक है, she is more pretty than her, तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स आ गए, pretty की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना pretty वो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, that's why we used than, ठीक है. लेकिन यहाँ पे when you are using the term prefer, ठीक है, ये जो प्रेफर करना होता है that is always accompanied with to, ठीक है, prefer to. कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं वो उनके साथ साथ चलती हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, आप उनको किसी दूसरी प्रेपोजिशन से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज़ होता है. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल भी दे देती हूँ कि ही प्रेफर्ड मी टू हर, ठीक है, तो प्रेफर के साथ हमेशा टू आएगा, इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड. जैसे सुपीरियर के साथ हमेशा टू आता है, इन्फीरियर के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, जब हम कहते हैं ही इज़ सुपीरियर टू मी, ठीक है, अगर सुपीरियर टर्म है तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये कभी भी टू के बगैर नहीं होगी. इन्फीरियर है तो वो भी टू के बगैर नहीं होगी. सेम इज़ द केस विद प्रेफर, प्रेफर भी टू के बगैर नहीं होता. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है, ओके. जब हम कहते हैं उसने गलती की, ठीक है, तो वो यूजुअली यूज़ दिस, डिड को हम की के साथ रिलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. तो हम ये नहीं कहेंगे ही डिड अ मिस्टेक, रादर देन दैट वी विल बी यूजिंग ही मेड अ मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक मेकिंग होती है तो दैट इज़ more appropriate one. तो rather than using he did a mistake we should say he made a mistake, ठीक है, ओके. एंड देन द नेक्स्ट इज कि जब हम कहते हैं वो हमारा मतलब हम दोनों का दोस्त है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूजुअली कॉमन यूज़ करते हैं. कॉमन इज़ नॉट अ मोर सूटेबल टर्म हियर. तो यहाँ पे जब आपका दोस्त, आप जिससे बात कर रहे हो या जिसके सामने खड़े हो, आप दोनों का कोई एक दोस्त है जो दोनों का दोस्त है, उसके लिए यू हैव टू यूज़ म्यूचुअल, ठीक है. आपने यूजुअली देखा होगा फेसबुक पे भी लिखा होता है, ठीक है, आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हो तो वहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन होती है यूर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है. अगर आप दोनों का, जिसकी प्रोफाइल में आप गए हो, आपका और उसका कोई फ्रेंड इकट्ठा फेसबुक पे ऐड है तो वो साइड पे लिखा होता है दैट ही और शी इज़ योर म्यूचुअल फ्रेंड. तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, जब आपने बताना हो कि हम दोनों का ये दोस्त है तो उसके लिए म्यूचुअल इज़ यूज्ड रादर देन कॉमन फ्रेंड, ठीक है, ओके. ख्वाब देखना, ठीक है, हम वही बात है, ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसको गलत परसीव करते हैं. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू से आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, ठीक है, आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट गलत है. रादर देन दैट यू शुड से आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. तो ड्रीम को हमेशा हैव और हैड के साथ यूज़ किया जाता है रादर देन सी और सॉ के साथ, ठीक है. आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट. अच्छा, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड नाइटमेयर. आई एम श्योर एवरीवन नोज़ अबाउट इट. अगर नहीं पता तो मैं गाइड कर देती हूँ. देखिए, ड्रीम होता है नॉर्मल, ठीक है, अच्छा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कुछ एक डराने वाला आप ख्वाब देखो जिसके बाद आप फ़ौरन यू फील हॉरिफाइड, यू फील टेरिफाइड, बहुत डर लगे, तो उसके लिए वी यूज़ नाइटमेयर, ठीक है. नाइटमेयर डरावना ख्वाब होता है और ड्रीम इज़ एनी काइंड ऑफ नॉर्मल, या जो आपको अच्छा हो या नॉर्मल हो, यानी कि जिससे डर ना लगे, दैट इज़ ड्रीम. अच्छा भी हो सकता है, बट नाइटमेयर इज़ ऑलवेज वेरी, इट मेक्स यू टेरिफाइड, आपको डर लगता है उसके बाद, ठीक है.
अच्छा, इंग्लिश वाली रिपीटेड है, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि शी इज़ गुड इन इंग्लिश, इसके बजाय हमें कहना चाहिए शी इज़ गुड एट इंग्लिश। ओके, अच्छा, अब ये वाली मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं, ठीक है, ये जो ही एंड मी, ये तो ऐसी मिस्टेक है, मैं कहती हूँ कि अगर आप 100% से एवरेज इसकी निकालें तो 80% पीपल जो हैं दे यूज़ मी अलॉन्ग विद ही, इस तरीके से जब ये यूज़ होता है। तो अगर हमने ये कहना हो वो और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो उसके बजाय ही एंड मी आर गुड फ्रेंड्स गलत है। रादर देन दैट यू शुड यूज़ ही एंड आई, ठीक है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। जब आप आई को ही के बाद यूज़ करते हो, ठीक है, या शी के बाद कुछ इस तरीके से किसी का नाम लेके, तो उसके साथ आपने अपना रेफरेंस देना हो तो वो मी नहीं होगा, वो आई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, अहमद एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो आई यूज़ होता है रादर देन मी। मी इज़ यूजुअली यूज्ड बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो अगर स्टार्ट में या कुछ इस किस्म का सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो यू हैव टू यूज़ आई, ठीक है। And that's it for today. I think it's more than enough because I tried to make it as helpful as possible because beginners के लिए सबसे बड़ा issues उनके यही होते हैं कि कुछ common mistakes हैं which they keep on repeating, which they keep on making because they never know the problem behind. उनको पता नहीं होता ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो करते जाते हैं because they never tried to diagnose it और उनको पता नहीं चलता. So these were some of the very common mistakes. इनको कोशिश करें if you are a beginner to try to avoid such kind of mistakes while speaking English because obviously it's going to increase your level and you will be a good speaker if you focus on these things which I just mentioned or which I just talked about. ठीक है, for now thank you so much और दुआओं में याद रखिएगा and please do not forget to subscribe to my channel. मिलते हैं next time. Thank you so much. खुदा हाफिज़.